Dear students, welcome back. Let me once again remind you about the comparison of ratios. First condition was if A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2, then the lines were intersecting. If the three ratios are equal, then coincident lines. If first two ratios A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2, then the lines were parallel. In the next question we shall discuss about this. Intersecting line, coincident line and parallel line. So you have to remember the ratios, the relation between the ratios. Question number 6. Given the linear equation, it is given to you. Write another linear equation. Only one equation is given to you. Second linear equation you have to write yourself in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is number 1, intersecting lines, number 2, parallel lines, and number 3, coincident lines. You know intersecting line. Just now we have studied for intersecting lines, A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2. It means you know A1, B1 and C1. A1, B1 and C1. You have to form a linear equation in such a way that A1 upon A2 should not be equal to B1 upon B2 should not be equal to C1 upon C2. Therefore another linear equations can be इस तरह की हो सकती है. It can be 3x plus 4x 4y 3x plus 4y minus 5 is equal to 0. Now look at here. If you write A1 upon A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2. You can see 2 upon 3 is not equal to 3 upon 4 from here and here. ये आपने खुद फॉर्म की है अभी. तीनों रेशियो इक्वल नहीं है. It means it is your another equation you have to form, another linear equation. तो पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या थी? फॉर पैरेलल लाइंस फर्स्ट टू रेशियोज आर इक्वल. फर्स्ट टू रेशियोज आर इक्वल इसका मतलब हो गया कि आपने फर्स्ट टू को इक्वल करना है, ये वाला और इसके अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 आपने इक्वल करनी है और C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं करना है. मीन्स आपने ऐसी फॉर्म करनी है इस तरह की जिसमें देखो आप A1 अपॉन A2 क्या होगा. A1 क्या था आपके पास? A1 was 2, B1 was 3, C1 was -8. A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2. Look at here. इसको सॉल्व करेंगे. A1 upon A2 1 upon 2 आएगा, B1 upon B2 1 upon 2 आएगा, C1 upon C2 -8 upon 3 आएगा. मीन्स फर्स्ट टू रेशियोज आर इक्वल एंड सेकेंड एंड थर्ड दे आर नॉट इक्वल. इसी तरह आप लोग किसके लिए बनाएंगे? थर्ड के लिए. कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है कि ऑल द रेशियोज आर इक्वल, यहाँ पे इक्वल होंगे. तो आपने सिंपली क्या करना है, जब आप इसके लिए करेंगे थर्ड, यू विल ट्राई योर सेल्फ, आप इसका डबल करेंगे. 2 का डबल 4, आप लिखेंगे 4x इसका डबल प्लस 6y इसका डबल -16. ये रहेगी आपकी अनदर इक्वेशन. अनदर लीनियर इक्वेशन इसके लिए क्या रहेगी? इसका डबल करो 4x प्लस 6y -16. वो आपका आंसर रहेगा. थर्ड पार्ट यू विल ट्राई योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 7. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines on the x-axis and shade the triangular region. आपने first of all you will draw the graph. You know two equations. You know how to find. अगर आपने यहाँ से अगर आप ग्राफिकली सॉल्व करना है, x is kept here. अगर आप इन दोनों को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, द साइन विल चेंज. इट विल बिकम प्लस, इट विल बिकम माइनस. इट इज प्लस एंड इट इज माइनस. नाउ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ 0 y. इट कैन बी 0 1 2 3 4. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. यू हैव टू पुट 3 वैल्यूज ऑफ y. अगर आपने सेकंड इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, देन 3x ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 3x इज इक्वल टू, इसको अगर आप उधर ले जाएंगे तो साइड
साइन चेंज हो जाएगी, प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द प्लस साइड देन माइनस साइड, प्लस 12 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन 3। यहां पर आप नाउ यू विल पुट 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x। उसके बाद जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, योर ग्राफ विल बी लाइक दिस, इट इज योर x एक्सिस, इट इज योर y एक्सिस। Whenever you will draw the plot on x axis and y axis, तो आप इस तरह के लाइंस कुछ बनेंगे। And you know it is x axis. On x axis you can see a triangle. Can you see? Yes, it is a triangle. ये आपकी ट्राइंगल बन रही है, इसके आपने कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। इसके कोऑर्डिनेट मीन्स यहाँ कौन सा पॉइंट है, यहाँ here you will have 2 3, here you will have -1, 0 एंड 4, 0। ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे इस ट्राइंगल के, एंड यू हैव टू शेड इट। आप इसको शेड कर सकते हैं चाहे लाइनिंग से, किसी भी ढंग से आप इसको शेड, यू नो इट इज योर ट्राइंगल। सेम क्वेश्चन है, पीछे भी हमने किया है, बट लास्ट में सिर्फ ये है कि आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है। किस पर बन रही है? इट इज ऑन एक्स एक्सिस। आपने इसको शेड किया एंड यू हैव रिटन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस ट्राइंगल, एंड यू कैन ऑल्सो नेम इट एज A, B and C. You can write it A, B and C. It is a triangle on coordinate x-axis. It is the triangle आपकी जो on x-axis पर आपकी जो triangle बन रही है, it is and coordinates are A, B, C. इसके आपने coordinates लिखने हैं। Similarly, you will try yourself these 3 questions. Solve graphically. आपने directly graphically करना इसको। 1, 2, 3. These 3 questions you will solve at home. और इस तरह सॉल्व करना इसको। आप जानते हैं इक्वेशन 1 and 2 दी है आपको, 1 and 2 गिवन है। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, और सिंपली आपने इसका ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है, ड्रॉ करना है आपने इसका ग्राफ। ये है आपका। देन उसके बाद आपका आता है, ये था 3.2, it is your 3.2 exercise completed. Now come to the exercise 3.3. अभी तक हम लोग ग्राफिकली इसको सॉल्व कर रहे थे। अल्जेब्रिक मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर पेयर इक्वेशन। तो आपने इसको कैसे करना है? अल्जेब्रिक मेथड क्या है? इसके 3 मेथड्स आपके करने के हैं। 3 मेथड्स यू हैव, सब्स्टिट्यूशन मेथड, elimination method and cross multiplication method. Here we shall use substitution method in this exercise 3.3. Exercise 3.3, solve the following pair of linear equation by the substitution method. In this exercise we shall use substitution, next exercise elimination, then next exercise cross multiplication method. Here you have 6 questions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. First you will try yourself, since it is very simple. I am trying second one. Substitution method में क्या करते हैं आप लोग? You have 2 linear equation. इनमें से आप किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, किसी एक को चूज करेंगे। उसमें आपने क्या करना है? 2 वेरिएबल में से एक को आपने लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, दूसरे को अपने राइट हैंड साइड में ले जाना है। लुक एट हियर, S is here. You are changing the side of t. It is plus side change, sign change. S is equal to 3 plus t. इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 देना है। ये आपका कहां से आया था? ये आपका इक्वेशन नंबर 1 से आएगा। अब आपने इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है 2 में। सब्स्टिट्यूटिंग दिस s इज इक्वल टू 3 plus 2 इन इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूशन का मतलब अब आप s के प्लेस में, आप इन प्लेस ऑफ s यू विल राइट 3 plus t। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। लुक एट हियर, s मीन्स 3 plus t अपॉन 3 plus t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। बाकी एज इट इज, only in place of s you will write 3 plus t. Now taking the LCM, 3 to 6 LCM हो गया। You know it is multiplied by 2 and it is multiplied by 3. 2 3 is 6 plus 6t, 2 3 is 6 plus 2t plus 3t is equal to 6. Like terms है दोनों, these two are like terms। 3 plus 2 5t 6, और ये आपका उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 6 36. 5t is equal to, now change its side, 36 minus 6
इट इज 30, t इज योर 30/5 इट इज इक्वल टू 6। आपका t का वैल्यू आ गया। अब आप इस t का वैल्यू इसको आप इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। योर s इज इक्वल टू 3 प्लस t, t मीन्स 6, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 9। ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें से आप किसी एक को लेंगे, इधर इक्वेशन नंबर 1 और 2, उसमें से आप क्या करेंगे, आप एक वेरिएबल यहाँ पे रखेंगे, दूसरे को उधर ले जाएंगे, और उसके बाद इसका वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और आपको t मिल गया। अगर आपको t मिल गया, आप उस t का वैल्यू आप इसमें रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो आपका किसका वैल्यू मिल गया, s का। हेंस s इज योर 9 एंड t इज योर 6। क्वेश्चन नंबर, इट वाज सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट भी हम ट्राई कर रहे हैं। थर्ड पार्ट सेम मेथड सेम रहेगा। देखिए कैसे, लुक एट हियर, इट इज अ थर्ड। इस यहां से आप किसी एक इक्वेशन को लेंगे। सपोज यू आर टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1, इसको आप उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज 3 प्लस 5, x इज इक्वल टू अपॉन में 3 प्लस वाई अपॉन 3। इसको इक्वेशन नंबर कौन सा दिया हमने, 3। अब इसका वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, x वाला, सिंस ये हमने यहां से लिया तो इसका वैल्यू अब आप इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। 9 एज इट इज, वैल्यू ऑफ x इज योर 3 प्लस वाई अपॉन 3, और ऑलवेज इट शुड बी विद इन द ब्रैकेट। x की जगह क्या लिखा हमने, 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9 एज इट इज। 3 3 जा 9, कैंसिल करो उसको, 3 3 जा 9। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 प्लस 3 इंटू वाई, 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। Here these two are like terms but opposite sign. Plus 3 minus 3 cancel, you have only 9. 9 is equal to 9. इसमें क्या चीज देखा हमने, इसमें हमने ये देखा कि x और y का वैल्यू नहीं आ रहा है। 9 is equal to 9 का मतलब हो गया कि दोनों इक्वल है। यस, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। हेंस इसका मतलब क्या आ गया, एवरी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 का जो सोल्यूशन है वो इक्वेशन 2 का है, एंड वाइस वर्सा, उल्टा है। और इक्वेशन 2 का सोल्यूशन क्या है, वो इक्वेशन 1 का सोल्यूशन है। ये हल्का सा डिफरेंट क्वेश्चन था इसलिए करवाया इसको। इसका मैं 5th पार्ट कर रहा हूं, आपको देखने को मुश्किल लग रहा होगा। अगेन इट इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। यहां से फिर आप इक्वेशन नंबर 1 को लेंगे, इसमें से आप एक यहां पे रखेंगे, दूसरे वाले को आप उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। अगर आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इट विल बिकम माइनस, सिंस यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे माइनस का होगा इसका। यू वॉन्ट एक्स ओनली, एक्स इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2, इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 में जो x हमारे पास आ गया, इसका वैल्यू वी शैल पुट इन इक्वेशन नंबर 2। √3 as it is, x in place of x we shall write now this minus √3 upon √2y minus √8y is equal to 0. Now multiply √3 into √3 only 3 minus as it is upon √2y minus √8y. अब आप इनमें देखिए इनमें क्या कॉमन है, y is common, so y taking common minus 3 upon √2 minus √8 is equal to 0. Now अगर आप you want y only, अगर आप इसको यहां से इस तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, ये अपॉन में चला जाएगा। अगर ये अपॉन में चला जाएगा, 0 upon something means 0, so the value of y is equal to 0. If the value of y is equal to 0, put the value of y is equal to 0 in equation number 3. x is equal to, यहां पर आप पुट कर करेंगे वैल्यू 0, एनी नंबर मल्टीप्लाई 0 इज 0, सो योर x भी क्या आ जाएगा, यहां पे आपने वैल्यू पुट की थी, इसमें आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की x में, y का वैल्यू, x आपको कितना मिला 0. इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 एंड y इज ऑल्सो 0. हमने कोई मेथड चेंज नहीं किया, प्रोसेस सेम वही है। इसी में एक मैं और आपको करवा रहा हूं जो आपको शायद थोड़ा सा मुश्किल लगे। नाउ इट इज अपॉन वाला 6 पार्ट, 3/2
x minus 5.3y is equal to minus 2 इक्वेशन नंबर 1, x/3 plus y/2 is equal to 30 मर्ची इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से फिर वही बात, सिमिलर प्रोसेस, आप एक को लेफ्ट फ्रॉम 1, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, इसको आप साइड चेंज कर रहे हैं राइट हैंड साइड में, इसको अगर आप साइड चेंज करें तो साइन चेंज, माइनस बिल्कुल प्लस। नाउ 3/2x is equal to taking the LCM is 3, 3 2s are 6, it is minus plus 5y। वी वॉन्ट x ओनली, हमारे को x चाहिए, तो आप इसको उधर ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मीन्स ये 3/2 का 2/3 हो जाएगा, बाकी एज इट इज। नाउ मल्टीप्लाई 6 2s are minus 12 plus 10y upon 3 3s are 9। नाउ इट इज द वैल्यू ऑफ x, इक्वेशन नंबर 3। और इसको कहाँ रखेंगे? वो हम लोग x का वैल्यू अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। What is equation number 2? 1/3 x. Now in place of x we shall write this, इस x की जगह, प्लस y/2 is equal to 13/6। Clear up to here? Now multiply -1 into 12, -12 plus 10y upon 9 3s are 27 plus y/2 is equal to 13/6 as it is। Now taking the LCM 54, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना, दोनों से करना मल्टीप्लाई, 2 will multiply by -12 plus 10y plus 27y। Now multiply -24 plus 20y plus 27y upon this। Now this will go here, 54 मल्टीप्लाई 13/6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको उसका कैंसिल करेंगे तो आपका ये आएगा 6 9 54। लाइक टर्म्स, दिस टू आर द लाइक टर्म्स, ऐड करो 47y -24 इज इक्वल टू 13 9 117। नाउ चेंज इट्स साइड, इट विल बिकम प्लस 47y is equal to 117 plus 24 which is equal to 141। So your y is equal to 141 upon 47, 47 3s are 141, आपको y का वैल्यू आ गया। जब ये x और y का या t का किसी का वैल्यू, तो हम उसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं? इक्वेशन नंबर 3 में। इट इज इक्वेशन नंबर 3, y is your 3, so you will put the y value y here, your x will be x is equal to -12 plus 10, here you will write 3। लो जी, substituting y is equal to 3 in equation number 3, x is equal to -12 plus 10 into 3/9, 10 3s are 30, so after solving it is 2। तो आपका x का वैल्यू कितना है? 2 and y is your 3। स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, कुछ भी नहीं। पहले आप इक्वेशन नंबर 1 को लेंगे, चाहे किसी भी तरह का आपको इक्वेशन 1, आप इक्वेशन 2 में जो भी आपने पिक करना, किसी को पिक करो आप। हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 लिया है, उसका आप लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ रखेंगे, राइट हैंड साइड को आप चेंज करेंगे, उसको आप सेकंड वेरिएबल को आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। 2 वेरिएबल में से आप लोग किसी एक वेरिएबल को यहाँ रखिए, सेकंड वेरिएबल को आप उधर ले जाइए, और जिस वेरिएबल की आप साइड चेंज कर रहे हैं उसका साइन भी चेंज करना है। उसके बाद अगर उसको एलसीएम लेने को तो लीजिए, तो आपने क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ सिर्फ आपको यहाँ पर x चाहिए, ओनली x यू वांट हियर, उसको इक्वेशन नंबर 3 दीजिए, और इस x का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे आपका y का वैल्यू मिल जाएगा, आप उसको इक्वेशन नंबर 3 में रखो, तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। मीन्स यू विल गेट x एंड y बोथ। इस वीडियो को बार बार देखते रहना, आपने समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।